tissues. This is another chapter in biology which we are going to start today. In this chapter, we will discuss about different types of plant tissues and animal tissue. We will also know the characteristics of that particular tissue and their function for plant or animals. Okay. So before entering into the topic, let us define the term tissue and let us have a brief concept what is tissue. Okay. So tissues. Let us define. Tissues are a group of similar cells having same origin and performing a specific function. Now, this definition of tissue has three important facts. Number one, tissues are a group of similar cells. It means whenever we talk about tissues, it represents a group of cells, and these cells have similar structure, so they are called similar. So simply we can say that a tissue is a collection of different cells having same structure. This is first thing which you should know about the tissue. Second thing is that they have same origin. Same origin means all these cells which form a particular tissue are formed from the same cell, or we can say they have originated from the same precursor. Okay, so I can write here same structure. All these cells have same structure and same origin, and these cells, all these cells which are collectively forming a tissue, are concerned with particular function. It means the function of tissue is ultimately the function of individual cells which collectively form that tissue. As for example, if sclerenchyma, which is a mechanical tissue of plant, helps to bear strength or rigidity in a plant body, then that function of tissue is not due to any particular cell, rather it is due to all these cells. It means all these cells are performing that function, therefore the tissue as a whole is performing that function. It means the function of tissue is due to the function of individual cells. All these cells are performing the same function, and therefore the whole tissue has particular specific function. Okay, मतलब ये है, सिंपल सा है कि कोई भी टिश्यू कई सारे सेल से मिलके बना होता है, पहली बात, ठीक है, और सारे सेल जो इसमें टिश्यू बना रहे हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है और उनकी ओरिजिन भी सेम होती है, मतलब वो किसी एक पार्टिकुलर ओरिजिन के होते हैं, ठीक है, यानी उनका जो प्रिकर्सर होता है, जिस सेल से वो बने होते हैं, वो सेम होता है, ठीक है। दूसरी बात कि सारे सेल मिलकर के एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल देखिए हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स के जितने भी सेल्स हैं उनका यही काम है कि वो सलाइवा के सिक्रीशन को प्रमोट करें, ठीक है ना। इसीलिए पूरे टिश्यू का फंक्शन वही होता है जो कि उसको बनाने वाले सेल्स का फंक्शन होता है, ठीक है ना। यानी छोटे छोटे सेल्स जो मिल करके टिश्यू बना रहे हैं वो वही फंक्शन करते हैं
जो कि पूरे टिश्यू का फंक्शन होता है। ठीक है, तो यही 3 चीज आपको डिफिनीशन में याद रखना है कि टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, मैं बायो की जब भी बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि आपको छोटे छोटे टर्म्स और उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट के नेम भी याद रखने चाहिए, क्योंकि इससे बायो की स्टडी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, क्यूरियोसिटी भी आपको डेवलप होती है, और दूसरी चीज की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है टिश्यू, इसको किसने दिया था? द टर्म टिश्यू was coined by Bechet। ठीक है, दूसरी बात, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। And the term histology was coined by Mayer। So these two scientists are related with the study of tissues. Okay, the term tissue was coined by Bechet and the term histology was coined by Mayer. So in fact we are going to study about histology, that is the study of tissues. Okay, now how are tissues classified? Simply they are classified into two types. Tissues are simply classified into two types. Number one, simple tissue and compound tissues. ये सबसे इजी क्लासिफिकेशन है टिश्यूज का और बेसिक क्लासिफिकेशन है, बहुत डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं है। किसी भी टिश्यू को हम लोग दो कैटेगरी में रख सकते हैं, पहला है सिंपल टिश्यूज और दूसरा है कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? दे आर टिश्यूज कंटेनिंग या फॉर्म्ड ऑफ भी आप लिख सकते हैं ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। केवल एक टाइप के अगर सेल्स होंगे टिश्यू में तो वैसे टिश्यू को हम लोग कहेंगे सिंपल टिश्यूज। ठीक है, कंपाउंड टिश्यूज क्या होते हैं? कंपाउंड टिश्यूज का मतलब हो गया ऐसा टिश्यू जिसमें कई टाइप के टिश्यूज, यानी कई सारे टिश्यू से मिलकर के अगर टिश्यू बन रहा है तो वैसे टिश्यू को हम लोग कहेंगे कंपाउंड टिश्यूज। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं दे आर टिश्यूज formed from more than one type of simple tissues। तो एक से ज्यादा टाइप के अगर सिंपल टिश्यूज होंगे तो फिर सेल्स भी एक से ज्यादा टाइप के होंगे। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर मैं बनाऊं इसको तो देखिए सिंपल टिश्यू को मैं ऐसे बना सकता हूं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सारे सेल्स एक जैसे हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली मैं शो कर रहा हूं इसको, और ये टिश्यू फ्लूइड है, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है, ये आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंपल टिश्यू का। ठीक है, अब हम कंपाउंड टिश्यू को अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा, ये एक टिश्यू हो गया, दूसरा ये टिश्यू हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ एक से ज्यादा टाइप के टिश्यू
या फिर हम कहें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स इस कंपाउंड टिश्यू में दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि टिश्यू फ्लूइड में एक साथ हैं। तो यही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है टिश्यूज का, ठीक है। हालांकि इस क्लासिफिकेशन में डिटेल क्लैरिटी हमको नहीं मिल रही है कि किस तरह से टिश्यूज को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टिश्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यूज और कंपाउंड टिश्यूज, ठीक है। लेकिन इस क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ के हम लोग प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के डिटेल क्लासिफिकेशन को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज को उनके कैपेसिटी ऑफ डिवीजन के बेसिस पर, यानी वो डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, इस बेसिस पर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है। पहले होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो कि डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है, यानी जो डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज, जो डिवाइड नहीं करते हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो आप सिंपली कहिए द प्लांट टिश्यूज व्हिच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, or we can say the plant tissues in which the cells have ability to divide and grow, that tissues are called meristematic tissues. Permanent tissues are those tissues which contains mature cell, that cells which do not divide, ठीक है ना। ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड नहीं करेंगे, पूरी तरह से मैच्योर हो गए। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको फिर से आगे इनके पोजीशन के बेसिस पर, मैं यहाँ नोट भी कर दे रहा हूं किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। पोजीशन यानी कहां पाए जाते हैं, इस बेसिस पर, पोजीशन के बेसिस पर इनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ये किस बेसिस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, यानी डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बेसिस पर प्लांट टिश्यू दो टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को उनके पोजीशन के बेसिस पर कि वो टिश्यू कहां पाए जा रहे हैं, इस बेसिस पर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मतलब क्या हो गया? एपेक्स पर, यानी रूट्स और शूट्स के, यानी स्टेम और रूट के एपेक्स पर, यानी एंटीरियर मोस्ट पार्ट पर, ठीक है ना। जैसे आपका ये स्टेम है तो स्टेम के यहाँ ये इसका एपेक्स हो गया। रूट जो होगा जमीन के अंदर होगा, तो जो उसका इंड होगा उसी को हम लोग कहेंगे एपेक्स, ठीक है ना। तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि रूट या स्टेम के एपेक्स पर पाए जाते हैं, इंड पर पाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। दूसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या हुआ? जैसे ये आपका प्लांट बॉडी है तो पूरा लेंथ वाइज ऊपर से नीचे तक, अंदर से लेटरली ये प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो वैसे मेरिस्टेम को हम लोग कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और तीसरे होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि स्टेम के इंटरनोड्स पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्टेम के इंटरनोड्स पर पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। मैं इसको एक फिगर से भी आपको क्लियर करता हूं। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इस चीज को जानने के लिए कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किन किन पोजीशन पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये मैंने स्टेम को बनाया है, ठीक है,
और यहां से मैं ऐसे लीव्स दिखा दे रहा हूं। थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाए इसको। ये लीफ यहां से निकल रहा है, ठीक है। अब अलग अलग प्लांट्स में लीफ अलग अलग पोजीशन से निकलते हैं। ये एक डायग्रामेटिक फिगर है। नीचे के लीफ बड़े बड़े होंगे क्योंकि ये पुराने होंगे, है ना। अच्छा, अब देखिए एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कहाँ होगा, एपेक्स पर होगा। यहाँ पर होगा एपिकल मेरिस्टेम। ये रीजन जो है एपिकल मेरिस्टेम का है, ठीक है। दूसरा आता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होगा, लेटरल मेरिस्टेम ये लेटरली प्रेजेंट होगा इस तरह से, इस तरह से पूरे बॉडी में होगा, ठीक है ना। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होगा, ये इंटरनोड्स पर होगा। जहां से आपका देखिए लीफ एराइज होता है या ब्रांचेस एराइज होते हैं, वो नोड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं पर भी वो हो, चाहे वो एपिकल पोर्शन पर हो, चाहे इंटरनोड्स पर हो, या फिर लेटरली प्रेजेंट हो प्लांट बॉडी में, जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे उनके जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल एंड थिन वॉल्ड होते हैं। अब ये बहुत सिंपली हम लोग याद रख सकते हैं। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, जो बार बार डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड होने के बाद जो सेल बनेगा वो तो अभी नया नया बना है, तो जाहिर सी बात है कि वो छोटा भी होगा और थिन वॉल्ड भी होगा। उसके जो मेम्ब्रेन होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, दोनों ही थिन होंगे क्योंकि अभी वो सेल पूरी तरह से डिवाइड, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि जब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे तो उसमें सेल क्या होंगे, स्मॉल होंगे और थिन वॉल्ड होंगे, ठीक है। दूसरी बात, दे आर राउंड, दे आर राउंड, ओवल और पॉलीगोनल इन शेप, पॉलीगोनल इन शेप मतलब अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, या फिर पॉलीगोनल इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने डायग्रामेटिकली उनको बना दिया, ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। अब सिंपली एक मॉडल के फॉर्म में बना रहा हूं, ठीक है ना। दे मे बी राउंड, ओवल और पॉलीगोनल इन शेप। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर आइसोडायमेट्रिक, दे आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक, आइसो मीन सेम होता है, डायमीटर, तो डायमीटर सेम होने का मतलब सिंपली ये है कि उनका शेप साइज फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। एक जैसा आपको शेप साइज सभी सेल्स के लगभग मिलेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटेन सेल्स व्हिच आर आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल पाए जाते हैं उसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, या फिर बहुत ही छोटा सा वैक्यूल होगा। इसीलिए देखिए यहाँ मैंने वैक्यूल नहीं बनाया है, जबकि प्लांट सेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में क्यों नहीं पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो न्यूली फॉर्म्ड है, डिवाइड होने के बाद तुरंत बना है, अभी वो सेल मैच्योर नहीं हुआ है। इसीलिए जब भी हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखेंगे माइक्रोस्कोप में, उसके सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें ये पता चलता है कि जो सेल बने हैं उसमें वैक्यूल्स दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, दे हैव
नो वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स नहीं है, साइटोप्लाज्म जो होगा वो पूरा साइटोप्लाज्म कॉन्स्पिशियस दिखाई देगा, मतलब पूरा डेंस मास आपको माइक्रोस्कोप में जब सेल्स को देखेंगे तो सेल्स में साइटोप्लाज्म डेंस मास के रूप में आपको दिखाई देगा। The cells have large conspicuous dense cytoplasm। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स पाए जाते हैं उनकी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज हम ये जाने कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फंक्शन आप जानते हैं कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं हम लोग तो वो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करेंगे तो एक सेल से माइटोसिस सेल डिवीजन से 2 सेल बनेगा, फिर 2 आगे डिवाइड करेंगे तो 4 सेल बनेगा। तो इस तरह से सेल का फॉर्मेशन होते रहता है, और नीचे सेल डिवाइड होते रहते हैं और ऊपर की तरफ पुश करते रहते हैं, जिससे कि लेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो ये किसके केस में होगा, एपिकल मेरिस्टेम के केस में होगा। जैसे एक रूट का फिगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं, ये रूट है, इस फिगर से थोड़ा क्लियर होगा आपको, और फिगर हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए बायो में, तब हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, रूट में रूट कैप पाए जाते हैं, रूट कैप के सेल्स हम पहले बना दें। पॉलीगोनल सेल्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, पॉलीगोनल मतलब कई सारे उसके साइड्स दिखाई देंगे आपको। ये रूट कैप है जो है कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है रूट के ऊपर। ठीक है, अब ये आपका एपिकल पोर्शन है, एपेक्स है रूट का। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ऐसे सेल्स दिखाई देंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, क्लियर दिखाई देगा। अब इधर की तरफ जो सेल दिखाई देंगे वो बड़े बड़े दिखाई देंगे, क्यों, जैसे ये सेल है तो ये डिवाइड किया तो 2 सेल बने, 2 सेल बने तो ये नीचे की तरफ जो जाएगा वो मैच्योर सेल होगा। ये रूट है ना, तो रूट जो है जमीन के अंदर ही जाएगा, तो जितने मैच्योर सेल होंगे वो नीचे की तरफ दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको न्यूली फॉर्म्ड सेल दिखाई देंगे और नीचे की तरफ आपको मैच्योर सेल दिखाई देंगे। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये आपका एपेक्स है रूट का, एपेक्स ऑफ रूट। तो अगर ये डिवाइड करते जाए तो इससे क्या होगा, ये जो आपको यहाँ पर ऐसे सेल्स होंगे ऐसे, ठीक है ना, मैंने बनाया नहीं है, बना सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि एपेक्स में है, यानी एपिकल मेरिस्टेम, वहां जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो इसका लेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है ना, और इस ग्रोथ को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। यानी एपिकल मेरिस्टेम का मेन फंक्शन हो गया इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ठीक है ना, स्टेम और रूट के लेंथ के इंक्रीज को ये प्रमोट करता है, और इस इंक्रीज को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ, कोई पूछ सकता है आपसे व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स बाय डिवीजन ऑफ cells in meristematic tissue at the apex of roots and shoots is called primary growth। जहां लंबाई बढ़ने की बात होती है वैसे ग्रोथ को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, रूट्स की लंबाई हो या फिर शूट्स की लंबाई हो। ठीक है ना, तो ये प्राइमरी ग्रोथ हो गया। अब दूसरा होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम आप जान रहे हैं कि प्लांट बॉडी के लेटरली पूरे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है ना, यानी अगर आप इस प्लांट का सेक्शन कट करें, ऐसे ये प्लांट है आपको ऐसे कट किया जाए तो गोला सा आपको सेक्शन मिलेगा,
तो आपका लेटरल मेरिस्टेम ऐसे दिखाई देगा, ये लेटरल मेरिस्टेम आपको दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। और सपोज करिए ऐसे आप ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखाई, ऐसे सीधा दिखाई देगा, वो अंदर अंदर ऐसे है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये अगर आपका डिवाइड करेगा तो क्या बढ़ेगा, डायमीटर, ठीक है ना। ये अंदर से अगर कोई लेटरली कोई टिश्यू प्रेजेंट है तो वो अगर डिवाइड करेगा, जैसे ये वाला पोर्शन अगर ये डिवाइड करेगा, यहाँ से ऐसे सेल बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ठीक है ना। आपने किसी ट्री के स्टेम को देखा होगा, कोई लकड़ी कटा हुआ होगा तो आप देखे होंगे, किसी पेड़ का लकड़ी आप देखेंगे तो आपको उसमें इस तरह से दिखाई देगा, उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसमें कई सारे रिंग दिखाई देंगे आपको, ठीक है। एक मिनट, ऐसे रिंग दिखाई देता है उसमें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप नहीं देखे होंगे तो लकड़ी जब भी कटा रहता है तो उसमें ऐसे रिंग दिखाई देता है। ये जो रिंग है ये कैसे बनता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे आपका लेटरल मेरिस्टेम है, वो एक बार डिवाइड किया फिर ऐसे हो गया, फिर डिवाइड किया फिर ऐसे हुआ, तो ये क्या कर रहा है, डायमीटर को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। अब लेटरल मेरिस्टेम डाइकॉट में पाया जाता है, मोनोकॉट में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। डाइकॉट क्या होते हैं, डाइकॉट मतलब हो गया ऐसे प्लांट्स जिनमें जो सीड है उसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है ना। डाइकोटिलेडनस प्लांट, जैसे चना है तो चना को आप भिगा दीजिए रात में और सुबह उसके सीड कोट को हटा करके देखिए, उसमें दो कॉटिलेडन्स आपको दिखाई देंगे, एक ऐसे दिखाई देगा, अलग हो जाएगा ये, और दूसरा जो होगा जब आप निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा ऐसे दो ठो होगा उसी में, ऐसे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि चावल है, राइस, वो केवल एक कॉटिलेडन है उसमें, व्हीट है उसमें भी आप देखेंगे तो एक कॉटिलेडन है, वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, वो अलग नहीं हो पाएगा। तो जो मोनोकॉटिलेडनस प्लांट होते हैं जिसमें सीड में केवल एक कॉटिलेडन होता है, वैसे प्लांट्स में लेटरल मेरिस्टेम नहीं पाया जाता है, इसीलिए उनका जो स्टेम होता है उसका डायमीटर इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे आप राइस को ले लीजिए, व्हीट को ले लीजिए, व्हीट प्लांट या राइस प्लांट को आप देखिए तो उसका जो स्टेम है उसकी डायमीटर इंक्रीज नहीं करती, वो पतला सा होता है। लेकिन आप मैंगो ट्री को देखिए, ठीक है, बनियान ट्री को देखिए, तो इसका जो आपका स्टेम होगा वो जैसे जैसे पेड़ पुराना होते चला जाता है तो उसकी डायमीटर इंक्रीज कर जाती है, क्यों, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टेम, और ये लेटरल मेरिस्टेम जब डिवाइड करेगा तो प्लांट के स्टेम का जो डायमीटर है वो इंक्रीज करते हुए चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये डिवाइड किया तो जाहिर सी बात है और टिश्यू बनेंगे, और डिवाइड किया ऐसे टिश्यू बनेंगे, तो ये चौड़ा होते चला जाएगा, या हम कहें उसकी डायमीटर या ग्रेथ जो होगी वो इंक्रीज होते चली जाएगी, ठीक है ना। और इस ग्रोथ को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। अभी और मैं बात करूंगा सेकेंडरी ग्रोथ पर, लेकिन मैं यहां पहले नोट कर दूं, इट इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ स्टेम या ट्रंक कहिए ट्री के लिए, ठीक है ना, बाई सेकेंडरी ग्रोथ, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। यानी अब देखिए टर्म क्लियर हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ से क्या बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होता है, डायमीटर इंक्रीज होता है। सेकेंडरी ग्रोथ विल इंक्रीज द डायमीटर ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट, या कोई ब्रांच निकल रहा है उसका डायमीटर बढ़ रहा है तो डायमीटर कैसे बढ़ेगा, सेकेंडरी ग्रोथ से, और उसमें कौन से मेरिस्टेम इन्वॉल्व होंगे, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अभी हम इस पे और भी बात करेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, जो इंटरनोड्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे यहां आप देख रहे हैं इंटरकैलरी है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है कि ग्रोथ ऑफ पार्ट्स, जैसे लीफ का ग्रोथ होना है, ठीक है, तो वो इंटरनोड्स से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही डिवाइड होकर के इधर ऐसे लीफ फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ इंटरनोड है तो यहाँ ब्रांच निकलना होगा, तो ये इंटरनोड पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे तो नया ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या हो गया, इट कॉजेज इंक्रीज इन
लेंथ ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, इट कॉजेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑर्गन्स। जो प्लांट से लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, तो उनके लेंथ में इंक्रीज करने का काम इंटरकैलरी मेरिस्टेम का होता है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा था कि लेटरल मेरिस्टेम के सेकेंडरी ग्रोथ वाले प्रोसेस को मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको बताऊंगा। तो वो क्या बताना है मुझे कि ये लेटरल मेरिस्टेम भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। यानी लेटरल मेरिस्टेम को फिर से हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है कॉर्क कैम्बियम और दूसरा होता है वस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको कॉर्क कैम्बियम या वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। रिंग क्यों कह रहा हूं मैं, जैसे ये आपका प्लांट है, ठीक है, तो अंदर से ऐसे ऊपर से नीचे तक अगर कोई चीज है तो आप जब सेक्शन कट करेंगे तो आपको दिखाई देगा ऐसे, ठीक है ना, गोला सा। क्यों, जैसे ये पाइप है, पाइप के अंदर एक पाइप है, ठीक उसी तरह से ये आपके लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसमें होते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे प्लांट बॉडी को एक पाइप की तरह समझ सपोज करिए, उसके अंदर उससे कम डायमीटर वाला पाइप एक रख दीजिए, ठीक उसी तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग समझ सकते हैं कि वो प्लांट बॉडी में लेटरली प्रेजेंट है। अब वो बड़े वाले पाइप के अंदर वो पतला वाला पाइप रहेगा, ठीक है, तो पतला वाला पाइप क्या है आपका लेटरल मेरिस्टेम है, और वो डिवाइड करेगा तो पूरे प्लांट के जो स्टेम है उसका डायमीटर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको दो टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया है, कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम। अब दो वर्ड नया आपके सामने है, कॉर्क और वस्कुलर। कैम्बियम तो मैंने बताया कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है उसी को नाम दिया गया है कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क क्या होता है, आपने कभी पुराने पेड़ को देखा होगा तो आप देखेंगे कि जो पुराने पेड़ होते हैं उनके सबसे बाहर वाला लेयर, स्टेम के सबसे बाहर वाला लेयर डार्क ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का दिखता है हम लोग को, ठीक है। तो क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि वहां पर डेड सेल्स होते हैं, ठीक है ना। यानी प्लांट के स्टेम के जो पेरिफेरी में सेल्स हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, और वही डेड सेल का जो लेयर होता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्क, ठीक। तो एक होता है कॉर्क के नीचे, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। यानी एक लेयर आपका होगा, जैसे आपका प्लांट बॉडी का ये स्टेम हो गया, सबसे बाहर जो आपका लेयर होगा उसको आप बार्क कहेंगे, ठीक है, वहीं पर आपका कॉर्क है, ठीक। अब कॉर्क के ठीक अंदर, यानी इतना चौड़ा आपका प्लांट है मान लीजिए, तो एक कॉर्क होगा, कॉर्क के ठीक अंदर एक लेयर होगा जिसको हम लोग कहेंगे कॉर्क कैम्बियम, ठीक। दूसरा, अब आपका ये प्लांट बॉडी है, बाहर आपका बार्क हो गया, उसके अंदर फिर आपका और भी टिश्यूज हैं, उसके सबसे सेंटर में क्या है, सबसे सेंटर में आपका वस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, नीचे से वाटर और मिनरल्स को एरियल पार्ट्स में ले जाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है, हमारे प्लांट बॉडी के लीफ में जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो उस फूड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फ्लोएम का होता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी स्टेम के सेक्शन को अगर देखें, जैसे ये तो ओल्ड वुडी स्टेम है, अगर मैं सिंपल सा एक स्टेम ड्रॉ करूं तो हमें ये सेंटर में कुछ टिश्यू मिलेगा जिसको पिथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटा सा हिस्सा ऐसे मिलेगा और ये आपका कॉर्टेक्स कहलाएगा, ठीक। अब ये वाले हिस्से में क्या दिखाई देगा आपको, इसमें क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा मैं बना रहा हूं, इसमें आपको जाइलम और फ्लोएम दिखाई देंगे, ठीक। मान लीजिए यहां पर आपको ये जाइलम सेल्स दिखाई दे रहे हैं, डेड सेल्स होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और बाहर की तरफ आपको यहाँ पर फ्लोएम दिखाई दे रहा है, और बीच में जो आपको टिश्यू दिखाई देगा इसी को हम लोग कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम। यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेटरल मेरिस्टेम है, उसको हम लोग कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम, ठीक। तो दो तरह के कैम्बियम रिंग होते हैं, एक कॉर्क कैम्बियम, दूसरा वस्कुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कहाँ होता है,
कॉर्क के ठीक नीचे, ठीक है। अगर बाहर से आप जा रहे हैं अंदर की तरफ प्लांट बॉडी में, सपोज करिए, या फिर आप सेक्शन कट करके देख रहे हैं, तो ये देखिए आपका कॉर्क, अगर हम कह रहे हैं ये कॉर्क है, तो कॉर्क के ठीक मैं यहाँ बना भी दे रहा हूँ, जैसे कॉर्क के ठीक नीचे आपको इस तरह से रिंग दिखाई देगा, ये आपका क्या हो गया, कॉर्क कैम्बियम। दिस इज योर कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और यहाँ पर आपके वस्कुलर बंडल्स ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम लोग वस्कुलर बंडल कहते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पाया जाएगा, यहाँ पर ये जो मैं बनाया हूँ जाइलम और फ्लोएम को बीच बीच में यहाँ पर जो पाया जाएगा वो कहलाएगा आपका वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन है, यानी ऐसे पेड़ है, इसको ऐसे कट करेंगे तो ये दिखाई देगा। लंबाई में अगर काटा जाए, जिसको हम लोग कहते हैं एलएस, लेटरल सेक्शन, तो एक आपको दिखाई देगा सबसे बाहर, ये होगा आपका कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और इसके अंदर आपको दिखाई देगा क्या, वस्कुलर कैम्बियम, ये वाला आपका कहलाएगा वस्कुलर कैम्बियम। दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ये जो आपका लेटरल मेरिस्टेम है, इट इज जनरली एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट प्लांट में नहीं पाए जाते हैं, डाइकॉट प्लांट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे कि मोनोकॉट कौन है और डाइकॉट कौन है? देखिए बहुत आसान है, आप केले का पत्ता देखे होंगे। ये सब मैं इसलिए कहता हूँ कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए पढ़ाई में, केवल बस रटना नहीं है, बस रट के बस डिफिनीशन याद कर लो, एग्जाम में लिख दो, ऐसा पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। केले के पत्ते को आप जरा देखिए, उसमें ऐसे ऐसे आपको वेन्स दिखाई देंगे, पैरेलल वेन्स ऐसे ऐसे दिखाई देंगे। देख लीजिएगा, केला तो बड़ा आसानी से हम लोग को देखने को मिल जाएगा, है ना। केला नहीं, लेकिन केले के पेड़ तो देखना है, इस तरह से आपको वेन्स दिखाई देंगे उसमें, है ना। तो ये वेन्स इस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पैरेलल वेन्स कहलाते हैं, पैरेलल विनेशन है ये। उसी तरह से राइस फील्ड में चले जाइए कभी, जहां पर चावल की खेती की जाती है, तो वहां अगर आप किसी प्लांट को देखेंगे तो उसका जो पत्ता होगा वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, इसमें भी आपको पैरेलल दिखाई देगा, वेन्स आपको पैरेलल दिखाई देगा। तो जहां पर पैरेलल वेन्स होते हैं वो मोनोकॉट होता है, ठीक है। वहीं आप पीपल का पत्ता देखिए, या मैंगो ट्री का एक लीफ ले लीजिए, ठीक है, उसको जरा देखिए, तो वो आपको लीफ इस तरह से, मान लीजिए पीपल ट्री का मैंने बना दिया, तो उसमें आप देखेंगे तो एक मिड वेन होगा और ये जो होगा रेटिकुलेट होगा, ऐसे पूरा जकड़ा होगा, ये पूरा ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पैरेलल नहीं मिलेगा। तो जिस पेड़ में या प्लांट में इस तरह का लीफ मिलता है, यानी रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन, वो सब डाइकॉट होते हैं। और जहां पैरेलल मिलेगा, पैरेलल विनेशन, वो सब मोनोकॉट होते हैं। जैसे मक्का हो गया, मेज, वो भी आपका मोनोकॉट है, ठीक है। बनियान ट्री, तुलसी, तुलसी की जो प्लांट है उसको जरा देखिए, इसी तरह मिलेगा आपको, तो क्या है, डाइकॉट है, ठीक है ना। तो डाइकॉट मोनोकॉट आप आसानी से पहचान लेंगे, ठीक। तो डाइकॉट में जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो दो तरह के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम, लेकिन दोनों का फंक्शन वही है, टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द प्लांट स्टेम, ठीक है ना, डायमीटर को इंक्रीज करना। अब ये डिपेंड करता है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है लेटरल मेरिस्टेम का, उसी बेसिस पर उसका डायमीटर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि तुलसी का प्लांट एक दिन मैंगो ट्री के बराबर मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुलसी प्लांट में लेटरल मेरिस्टेम का ग्रोथ एक लिमिट तक होता है, इसीलिए उसकी डायमीटर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है, ऑल्दो इट इज ए डाइकॉट। लेकिन मैंगो ट्री को आप देखिए कि उसका डायमीटर काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। बनियान ट्री को देखिए काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो डाइकॉट में होता है, लेकिन उसका एक्सटेंट डिपेंड करता है कि लेटरल मेरिस्टेम कितना डेवलप्ड है और कितना एक्टिवली वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन मोनोकॉट में ऐसा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, इसीलिए मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनका जो डायमीटर है वो इंक्रीज नहीं करता है, या हम कहें कि एक लिमिट तक ही उसमें आपको डायमीटर में इंक्रीज दिखाई देगा, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि
cords have generally no lateral meristem or they have very little development of lateral meristem. ठीक है ना? तो ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में डिस्कशन हो गया. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे टिश्यूज होते हैं? जिसमें रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी जो सेल इमेच्योर हो, जो बार बार डिवाइड करें. इनके लिए एक बहुत यूनिक टर्म है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है टोटीपोटेंट सेल्स. टोटीपोटेंट सेल्स. टोटीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं? न्यूली फॉर्म्ड सेल्स या एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल्स. ऐसे सेल्स जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, वही सेल जो नए डिवीजन के बाद अभी बने हुए हैं, वो आगे चल के मैच्योर होंगे या दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज होंगे, तो वैसे सेल्स को हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स. ये बहुत पूछा जाता है. टोटीपोटेंट सेल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है ना? टोटीपोटेंट सेल्स आर फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप के हो गए? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम का मेन फंक्शन क्या है? प्राइमरी ग्रोथ, मतलब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट्स और शूट्स. लेटरल मेरिस्टेम का मेन फंक्शन क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ. दे हेल्प इन इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ रूट्स और शूट्स. ठीक है. और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या फंक्शन है? दे कॉज ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स लाइक branch of tree increases in length due to intercalary meristem, and different structures which are present on the plant body grow because of intercalary meristem. ठीक है. तो this is all about meristematic tissues. The next tissue is permanent tissues. Okay.